Good afternoon, all. So we'll wrap up today's session a little quicker. Um, okay. So first, we'll begin with the recap or like what we have already learned from previous classes. Okay. Anyone wants to say anything before we begin? Okay. Okay. So the important concepts that we already know from our previous lessons is about natural number, about what whole number is. So as we know, natural number starts from one and it goes till the end, and thereafter we have learned about successor and predecessor as well. So as we know, when we add one to any number, be it natural or whole number, we get the successor of that particular number. And when we subtract one, like one value from a number, we get the predecessor of that particular number. But similarly, like every natural number has a successor, but except one, two, three, four, right? So one, except one, every natural number has a predecessor as well, because we cannot get the predecessor of we cannot determine the predecessor of one, because one is the set of natural numbers starts from one itself. So there won't be any predecessor. There is no previous value of one. If you deduct one from one, we won't get any natural number. It will turn out to be a whole number, right? So sorry. So similarly, like we have already learned about whole numbers, it starts from zero and it goes till the end, like whatever number you want to determine, like infinity, right? So if we it goes on, right? When we add when we add zero to the set of natural number, we get the set of whole numbers. Set is the entire block of numbers. Okay. Now, like I said, one in natural number, one doesn't have a predecessor. Similarly, in whole number, except zero, everything has a predecessor. Because if we kind of minus, if we kind of deduct a value from zero, it will go to a negative valuation. So that cannot be a whole number, right? So that's about it. And apart from that, all natural numbers are whole numbers because, of course, it will be starting from one. Everything is it's already included in whole number and natural number both. But all whole numbers are not natural numbers because zero we cannot determine it as natural number, right? Apart from that, we have also seen a line segment, or which is a number line. So number line, if we mark in a line, basically we know what a line is. So it's a straight thing which Yash also kind of taught us in physics. Like we learned about distance, we learned about displacement as well. So एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के टाइम पे हम लोग एक लाइन खींच देते, तो वो मतलब टू पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए जो मिडिल में एक स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर एज इन जो भी बनता है वो हम लोग लाइन बोलते हैं बेसिकली. दैट इज व्हाट इट इज, लाइक लाइन सेगमेंट. तो ये जो लाइन बनता है उसमें हम लोग अगर कोई भी पॉइंट को जीरो से मार्क कर रहे हैं तो इक्वल इंटरवल पे 1 2 3 4 करके हम लोग लिखते हैं जैसे स्केल में होता है. ओके. एंड सिमिलर वे में अगर उसका नेगेटिव, मतलब हम लोगों को अगर उसका नेगेटिव तरफ में जाना है तो पॉजिटिव में तो 1 2 3 4 होता है, सिमिलरली नेगेटिव में भी 1 2 3 4 ही होता है, बस -1 -2 वही सिमिलर इंटरवल में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. तो एक नंबर ऑपरेशन में तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लाइक जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी कर सकते हैं. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो लर्न अबाउट वही चीज जो कि हम लोग अगर लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो वो नेगेटिव वैल्यूएशन पे जाते हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन ऐड हो जाता है, लाइक सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं, राइट. एंड अगर हम लोग यहाँ पे और एक चीज हम लोगों ने सीखा था कि मल्टीप्लीकेशन जब होता है वो कोरेस्पॉन्ड करता है एक लाइक इक्वल डिस्टेंस पे जंप करना. लाइक यश ने आपको डिस्टेंस समझाया था, राइट. तो डिस्टेंस एज एन वही डिस्टेंस अगर इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम लोग 2 का मल्टीपल कर, राइट, तो 2 के बाद फिर 4 ही आएगा, 2 के बाद 3 नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल पे मल्टीप्लीकेशन जंप करता है अपने आप. ओके. एंड इट कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज अगर हम लोग कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ओके. Any question up until now? Am I clear, audible, and everything is fine, right?
Okay, thank you, Shravan. Okay, so now adding to whole number, like अभी हम लोगों ने और एक चीज सीखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी सीखा था. तो होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर आर enclosed under addition and multiplication. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम लोग कोई भी दो होल नंबर को ऐड कर रहे, कोई मतलब किसी भी ऑर्डर में, कोई भी स्ट्रक्चर के वाइज या फिर कोई भी पैटर्न में हम लोग उसको ऐड कर रहे, तो वो सेम लाइक वो एक होल नंबर देता है, और विल ऑलवेज गेट अ होल नंबर बेसिक. ओके, and this whole number, the entire whole number, all or this natural number, the entire number system is already enclosed in this particular property, okay? Addition and multiplication. Okay, great. So but एक चीज हम लोगों ने और एक चीज वहीं पे जाना था कि अगर सब्ट्रैक्शन या डिविजन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो होल नंबर उस पर एनक्लोज नहीं होता है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने सीखा था लास्ट टू लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट वीक में, तो वहां पे हम लोगों ने ये जाना था कि अगर कोई भी नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर डिवीजन के लाइक ऑपरेशन में, हम लोग उस नंबर को मतलब वो वैल्यूएशन खो देते हैं, राइट, इफ वी चेंज द ऑर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लाइक काइंड ऑफ अगर हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं 2 - 1, ओके, तो वो 1 आ जाता है. पर अगर हम लोग 1 - 2 कर रहे, तो वो फिर डिफरेंट, मतलब वो फिर प्लस माइनस करके फिर वो एक नेगेटिव वैल्यूएशन आ जाएगा. तो ऐसे ही चलता है. तो इसमें हम लोग फिर होल नंबर को खो देंगे, तो वो क्लोज नहीं होगा. होल नंबर उस प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब ऑपरेशन के अंदर हम लोग उसको क्लोज नहीं कर सकते. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तक जितना भी हम लोगों ने बचपन से मैथ्स पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने ये तो बहुत ही एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जो कि नंबर 10 है, कि हम लोग अगर कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दे, तो वो इनडेफिनिट हो जाता है. ओके, एंड वी डू नॉट गेट एनी लाइक विच इज अ नॉट डिफाइंड वैल्यू, और हम लोग कभी काफी टाइम हम लोग उसको इन लाइक इन्फिनिटी भी टर्म करते हैं. नाउ ओके, तो हम लोग जब 0 और 1 के कॉन्सेप्ट, 0 और 1 को पहचान रहे थे कि व्हाट इज 0 और व्हाट इज 1, बेसिकली जो कि एकदम ही स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं नंबर्स का. तो उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि 0 एक होल नंबर के काइंड ऑफ एडिशन, लाइक एक होल नंबर के आइडेंटिटी, जब हम लोग उसको एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशनल प्रॉपर्टीज को वो होल्ड करके रखता है. तो 0 इज बेसिकली एन आइडेंटिटी for addition of a whole number. Okay, and similarly 1 is an identity for multiplication, because of course, because any whole number which you are multiplying with 1, it will retain its own identity, it will retain its own value. Okay, and similarly if we are adding 0 with a whole number, so the number will retain its identity, because 0 तो वो फिर 1 + 0 फिर 1 ही आएगा, राइट. सिमिलरली कोई भी नंबर अगर आप 0 से ऐड कर रहे हो, तो वो अपना खुद का जो आइडेंटिटी है वो लूज नहीं कर. सो दिस इज अबाउट इट. आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज और जाने थे, विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अगर किसी को याद है, यू कैन यू मेंशन इट, कोई भी अगर इफ यू वांट टू वॉलंटियर एंड से कि आपको क्या याद है, एंड लाइक कोई भी टर्म का लिटरल मीनिंग भी अगर आप बता सकते हैं, कोई भी, एनीवन. लाइक कम्यूटेटिव क्या होता है या फिर एसोसिएटिव क्या होता है, आपको क्या लगता है कि एसोसिएटिव का मतलब क्या हो सकता है इन जनरल, मैथमेटिकल टर्म के अलावा भी. डिस्ट्रीब्यूटिव का, फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या हो सकता है, या कम्यूटेटिव. ओके, ओके तनु, राइट. एनीवन एल्स वांट्स टू से? राइट शुभम, राइट, यू आर राइट. Yeah, Vivek, you're right. So, first one which you mentioned, is a commutative, and next one which you mentioned, it is a associative property, जो कि ग्रुपिंग के बारे में बोलते हैं हम लोग, कि
अगर हम लोग ए और बी को एक ब्रैकेट के अंदर ग्रुप कर रहे हैं और सी को प्लस प्लस वैल्यूएशन पे बाहर रख रहे हैं, या आस्तिक, या एब्सोल्युटली, यू आर आल्सो राइट, यस विवेक। सो विवेक, आप लोग सारे अगर चैट बॉक्स खोल ले तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे। तो विवेक ने जो पहले वाला एग्जाम्पल दिया है, a प्लस बी विच इज इक्वल टू b प्लस ए, विच इज कम्यूटेटिव बेसिस। ओके, कोई भी ऑर्डर के बारे में बोलते हैं कि कोई भी ऑर्डर में अगर उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है या फिर प्लस किया जा रहा है तो उसको कम्यूटेटिव के अंदर हम लोग मतलब कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल दिया गया है विच इज a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी को एक ग्रुपिंग करके प्रेजेंट किया है, और उसके बाद जो इक्वल टू के बाद हम लोगों ने ए और बी को उसको ग्रुप किया है, तो दैट इज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके गाइस, एंड आस्तिक ने जो एग्जांपल दिया है दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ए को हम लोग बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ए के वैल्यू को हम लोग उसमें या राइट नेहा श्रीवास्तव, तो ए के वैल्यू को हम लोग दोनों में मतलब काइंड ऑफ बांट दे रहे हैं। ओके ग्रेट, ओके, all of you remember, great. So commutative, associative and distributive property of a whole number is basically used for simplifying calculations, और हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम लोग ये यूज कर रहे हैं। ओके, तो we just do it anyhow. So apart from that हम लोगों ने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था, डॉट्स को लेके, जैसे कि 4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद डॉट्स, एंड हाउ टू काइंड ऑफ फॉर्म पैटर्न्स विद इट। ओके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव लर्न। सो नेक्स्ट चैप्टर 3 में आ जाता है क्लास 6 में कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में आ जाता है, और होल नंबर लाइक प्लेइंग विथ नंबर्स पे ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ पे फैक्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि क्या है। ओके, बट आई विल रिपीट इट अगेन बिकॉज ऑलरेडी 1 वीक का गैप हो गया था, प्रोबेबली सम ऑफ यू आर न्यू ऑल्सो, सो आई विल जस्ट रिपीट इट। तो फैक्टर इज बेसिकली अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो डिविजर, डिविडेंड और कोशेंट, ठीक है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, एंड काफी टाइम हम लोग ये टर्मिनोलॉजी में खो जाते हैं कि व्हाट टर्म एक्चुअली मीन्स व्हाट। सो दैट्स द रीजन व्हाई मैंने ये एग्जांपल्स, यू कैन सी बेसिक ये जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 इज द डिविजर एंड 81 इज द डिविडेंड, जो कि 9 डिवाइड करेगा। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वोशंट यहाँ पे 9 आ रहा है, अलग नंबर पे अलग आ सकता है। तो अगर एक नंबर पूरा अपने आप को लाइक एक नंबर को पूरा डिवाइड कर दे रहा है, तो वी कैन कंसिडर इट एज अ लाइक अ डिविजर और अ फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, तो एग्जैक्ट डिविजर मतलब वही होता है जो कि एक पूरा नंबर को कंज्यूम कर लेता है अपने अंदर और उसको डिवाइड कर देता है कोई भी वैल्यू। ओके, तो लाइक यू कैन सी योर 81 का एक लाइक एग्जैक्ट डिविजन 9 है, ठीक है, क्योंकि वो 9 के साथ डिवाइड करके क्वोशंट बना दे रहा है, एंड वी आर गेटिंग अ रिमाइंडर व्हिच इज 0। ओके, so this is basically factor, वही नंबर होते हैं which is an exact divisor of a particular number। okay, so similarly अगर नंबर हम लोग 4 कंसिडर कर रहे हैं तो 4 का exact divisor 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 होगा। और हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था लाइक फैक्टर के जो काइंड ऑफ पार्ट्स में, वो की क्या एक फैक्टर का फाइनाइट वैल्यू होता है, राइट? मतलब 4 अगर हम लोग 4 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 4 तक ही वो वैल्यू आपको मिलेगा। इट इज प्री डिटरमाइंड। ओके, 4 तक ही उसका फैक्टर कंटिन्यू होगा और 4 विल बी द लास्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है, राइट? सो दैट्स हाउ इट गोस। तो am I like are you guys understanding? मैं फास्ट जा रही हूँ, स्लो जा रही हूँ, इज इट ओके? Is it okay, guys? Okay, great. Okay, और एक बहुत बेसिक लाइक यही डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशंट में एक इक्वेशन बनता है which is dividend is equal to divisor multiplied with quotient plus remainder। और ये अगर हम लोग याद रख रहे हैं तो कोई भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग इसको बेसिक like basic इसका equation use करके we can solve it very easily. We'll see that examples as well. We'll see those examples, okay?
And apart from that, we have also learned about few areas in this particular factor के बारे में, which is one is a factor of every number, like we know. Um, every number is a factor of itself. Okay, it's very self-explanatory. आप लोग example देख लीजिए. ये मैंने already किया है. Great. ठीक है. Okay, great. So apart from that, every factor of a number is an exact divisor or of that particular number. एक कोई भी number अपना खुद का तो होगा ही. Okay. So apart from that, every factor is less than or equal to that particular number which I said, like एक finite value होता है, like मतलब predetermined 16 अगर है तो 16 तक ही जाएगा, 34 अगर है तो 34 तक ही उसका factor के valuations जाएंगे. Okay, which is okay, which is the second point, like fifth point as well. After that, we came to know about multiples. तो मल्टीपल्स में हम लोगों ने ये देखा था कि मल्टीपल्स क्या होता है. एक नंबर लाइक एक नंबर से स्टार्ट होता है. अगर 4 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 से स्टार्ट होगा या 4 से स्टार्ट होगा और उसका वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगा. ओके, लाइक यू कैन सी हियर 7, तो 7, 14, 21, 28, तो वहां से लेके तो अब 7 अपना कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके अपना मल्टीपल उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. तो इट विल गो टिल इनफाइनाइट. हो गया. ओके, ग्रेट. सो after that, and also 7 is a multiple of itself as well. Okay. So next we will understand few types of numbers, or we can say like few parts, like number को हम लोग किस किस कैटेगरी में हम लोग उसको रख सकते हैं. ठीक है, फॉर आवर बेटरमेंट और लाइक हम लोगों के इजी यूज के लिए. ठीक है, नंबर को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए या फिर जानने के लिए. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अगर हम लोग कुछ नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं. किसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं? परफेक्शन इज, आई बिलीव, परफेक्शन कोई भी चीज में परफेक्ट एकदम विच इज नंबर के हिसाब से वी सी कि अगर कोई नंबर अपना जो भी फैक्टर्स है सबको सम मतलब सबको ऐड करके अगर वो जो वैल्यू आ रहा है उसका जो एडिशन का जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो वैल्यू अगर डबल है, लाइक ट्वाइस है, ठीक है, तो वो नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर के हिसाब से कंसिडर करते हैं. लाइक यू कैन सी कि एक फैक्टर है 6, एक 6 का जो फैक्टर्स है 1, 2, 3 एंड 6, तो उसको अगर हम लोग कंप्लीटली ऐड कर रहे तो हम लोग को 12 मिल जा रहा है, राइट. तो 12 इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ 6, राइट. 2 into 6 is 12, राइट. तो 6 एक परफेक्ट नंबर बन गया. सिमिलरली 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, which is 1, 2, 4, 7 and 14 plus and 28, उसका पूरा सेट है, लाइक सेट ऑफ फैक्टर्स बोल सकते हैं 28 का. तो ये कंप्लीट नंबर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं देन विल गेट 56, which is again twice of 28. ओके, तो सिमिलर वे में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर्स. अगर आप लोग याद रख रहे हैं जनरली 496 तक याद रहता है और 8128 भी काफी लोगों को याद रहता है, बट उसके बाद वाला याद नहीं रहता है. बट काफी नंबर्स पे अगर हम लोग ये थोड़ा सा याद रख रहे हैं तो इन दैट केस सीसैट में भी और जो भी हम लोग बेसिक लेवल न्यूमेरिकल्स हो या फिर कैट लेवल, सीसैट लेवल, कोई भी न्यूमेरिकल में यही आता है, फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर यूज करके कोई एक पर्टिकुलर न्यूमरेशन लाइक कोई एक पर्टिकुलर सम को सॉल्व करने के लिए देते हैं. ओके, तो यही हो गया. तो परफेक्ट नंबर में किसी को कोई क्वेश्चन है या एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग एल्स? कोई ऐड करना चाहते हैं? Okay, great. So I'll move on. Move to prime and composite number. तो प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर बहुत ही लाइक इंटर रिलेटेड है. ठीक है, अगर हम लोगों को पता है प्राइम नंबर क्या है तो कॉम्पोजिट नंबर ऑटोमेटिकली हम लोगों को पता होगा ही. ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होता है फर्स्ट ये जान लेते हैं, राइट. तो द नंबर अदर देन 1
whose only factor are 1 and the number itself, ठीक है, वो होता है प्राइम नंबर। अगर हम लोग हिंदी में कोई कुछ बोल रहे हैं मैम, मे आई से the remainder will be either 0 or greater than 0, always be less than the divisor. Remainder will be either 0 or greater than 0. Yeah, you can say that. रिमाइंडर अगर 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो ऑलवेज लेस देन डिविजर कौन, मतलब व्हाट यू आर टॉकिंग, लाइक रिमाइंडर लेस तो होगा ही बिकॉज 0 तो लेस ही है सब नंबर से। विवेक थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर देंगे आपका क्वेश्चन, या डू यू वांट मी टू अनम्यूट यू सो दैट यू कैन ऐड ऑन, जस्ट राइट यस और नो। आप क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं या डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक व्हाट शुड बी ऑलवेज लेस देन 0? either 0 or greater than, okay, remainder you're talking about। अगर रिमाइंडर आप ये बोल रहे कि इफ अ रिमाइंडर विल बी 0 और ग्रेटर देन 0 and always be less than the divisor, yeah, of course it should be, I think। रिमाइंडर से तो हाँ कम, रिमाइंडर तो हमेशा कम या either 0 और ग्रेटर देन 0 होगा, तो डिविजर से तो लेस ही होगा। ओके, या ओके ग्रेट। ओके, तो अभी प्राइम नंबर हम लोगों को पता चल गया कि क्या है, जो एक नंबर जो जिसका फैक्टर वो खुद है और 1 है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो 2, 3, 5, 7, 11, ओके, 2, 3, 5, 7, 11 और बहुत सारे 13 है, ठीक है। तो क्योंकि 2 खुद का फैक्टर है और 1 उसका खुद का फैक्टर है, ठीक है, तो 1 और 2 अपना अपना खुद का 2 है फैक्टर और 1 भी है, ओके। सिमिलरली 3 एंड 5 एज एंड इट विल फॉलो, ओके। तो ये प्राइम नंबर हो गया। और कॉम्पोजिट नंबर जो भी प्राइम नंबर नहीं है तो वो कॉम्पोजिट है, मतलब ऐसे मत समझिए पर टेक्निकलिटी पे जाइए, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे समझेंगे, क्यों बचपन में काफी टाइम ऐसे समझते थे हम लोग, लेकिन the remainder will always be less than divisor. Yeah, Shubham, right. Yeah, that's what I think Vivek also meant, and that's what he wanted to say. Okay, तो क्योंकि अगर हम लोग कॉम्पोजिट नंबर को समझने की कोशिश करें तो कॉम्पोजिट नंबर इज बेसिकली जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। मतलब क्या हो गया कि एक नंबर वो खुद का तो फैक्टर है, ठीक है, और 1 भी उसका फैक्टर है, तो 2 ऑलरेडी हो गया, और एक एक्स्ट्रा या फिर 2 एक्स्ट्रा या जो भी एक्स्ट्रा है फैक्टर्स है, तो एक 2 से ज्यादा ही तो फैक्टर होगा, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स का। तो जैसे कि आपका 4 का क्या क्या है, 1 है, 4 है, 2 है ना, तो एक्स्ट्रा है, 2 से तो ज्यादा ही है, तो 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर वही है जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा है, और प्राइम नंबर वही है जो जिसका फैक्टर वो खुद है और 1 है, ठीक है। एंड द नंबर विच इज लाइक, वही मैंने जो बताया वही इंग्लिश में है यहाँ पे लिखा कि अ नंबर विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 नंबर। जो भी नंबर है एटलीस्ट एक नंबर से तो डिविजिबल होगा ही, 1 एंड खुद का और 1 के अलावा एक और नंबर से वो तो डिविजिबल होगा ही, जैसे 4, 6, ओके। सिमिलरली यहाँ पे आपका 1 to 10 का प्राइम, लाइक 1 से 100 का जितना भी प्राइम नंबर्स है आई हैव लिस्टेड इट डाउन, एंड कॉम्पोजिट नंबर भी जितना जितना है आई हैव लिस्टेड इट डाउन। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कम्स, काफी लोग ये बोल सकते हैं कि व्हाई वी कैन नॉट से, बिकॉज इट्स वेरी काइंड ऑफ, अगर हम लोग एक नजरिया एक झलक में देख रहे तो विल सी कि हम लोग ये भी बोल सकते थे कि जो भी प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर, बट दैट्स नॉट द सिनेरियो, बिकॉज 1 यहाँ पे एक एक्सेप्शनल चीज हम लोगों को दिखा रहा है, विच इज 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। वो एक प्राइम नंबर की कैटेगरी पे भी नहीं आता है और कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी पे भी नहीं आता है, क्योंकि वो दोनों का ही रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि 1
खुद का लाइक वन ही है उसका फैक्टर और इटसेल्फ तो वो खुद वन ही है, राइट? तो प्राइम फैक्टर का जो बेसिक रूल है और जो बेसिक फंडा है वो तो फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली कॉम्पोजिट नंबर का भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका दो से ज्यादा मतलब उसका एक ही है फैक्टर, राइट? तो that is how it follows. Anything else anyone else wants to add, or is it understandable? Because ये बहुत basic concept है और हम सबको prime number composite number शायद पता ही ना, right? All good. Okay, great. So now एक यही वाले पार्ट पे एक मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिनका एक पर्टिकुलर एक फॉर्मुलेशन है जिससे हम लोगों को ये डिटरमाइन हुआ था लाइक क्या प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर का क्या सेट हो सकता है। ओके, तो इनका नाम था इनका नाम sieve of Eratosthenes is basically the entire concept, okay, and the mathematician name was Eratosthenes, and he was a kind of third century mathematician थे, okay. So anyone knows anybody else like मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, anyone else, any other mathematician of third century if you can remember? किसी को अगर याद है तो बता दीजिए. I just suddenly मेरे को वो आया, curious. I was a little curious. If anyone knows, you can just mention it. If not, fine, I'll search it. तो उन्होंने क्या मेंशन किया था स्टेप 1 में कि एक अगर हम लोग सेट ले रहे हैं 1 to 100 का, ठीक है, तो 1 to 100 का अगर हम लोग सेट ले रहे हैं तो क्रॉस आउट 1, क्योंकि 1 तो कुछ भी फॉलो नहीं करता है, तो विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, और 2 को हम लोग एनसर्कल कर रहे हैं, मतलब सर्कल कर रहे हैं 2 को, और 2 के जितने भी मल्टीपल्स है लाइक 2, 4, 6, 8, ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 100 तक जितना भी मल्टीपल्स होगा 2 का, उस सबको हम लोग क्रॉस कर देंगे. फेयर इनफ? ओके, तो अब क्या होगा 3 का नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हम लोग 3 को नेक्स्ट 3 को हम लोग अनक्रॉस रखेंगे, विच इज एनसर्कल कर देंगे, उसको सर्कल करके, और बाकी 3 का जितना मल्टीपल्स आएगा उसको सारे को हम लोग क्रॉस कर देंगे. सिमिलरली 5 को हम लोग एनसर्कल कर देंगे और 5 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे उस सब को हम लोग क्रॉस आउट कर देंगे. लाइक क्रॉस आउट मतलब पूरा वॉमिट नहीं करना है, बस एक क्रॉस लगाना है, ठीक है. तो ये प्रोसेस चलेगा 10 तक, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को ये दिखेगा कि जो भी नंबर हम लोगों ने एनसर्कल किया है, लाइक बेसिकली हम लोगों को एक सेट ऑफ नंबर्स मिल जाएगा जो कि सर्कल के अंदर रहेगा, और एक सेट ऑफ नंबर्स मिल जाएगा जो कि क्रॉस के अंदर रहेगा, ठीक है, क्रॉस में रहेगा. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी नंबर हम लोग एनसर्कल किए थे, मतलब सर्कल के अंदर जो भी नंबर थे, विच इज द प्राइम नंबर, एंड जो भी नंबर हम लोगों ने क्रॉस आउट करा था, which is falling under composite number. So this entire method was formed by this particular mathematician, and it was called the sieve of Eratosthenes. Okay, great. Sorry guys. Okay, now we'll understand को-प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर. तो को-प्राइम को हम लोग काफी और टर्मिनोलॉजी पे भी बोल सकते हैं. आप लोग काफी न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि म्यूचुअली प्राइम बताया गया है या फिर रिलेटिवली प्राइम बताया गया है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर को-प्राइम ओनली. कंफ्यूज मत हो जाइए कि ओ माय गॉड आई डोंट नो, मतलब को-प्राइम पढ़ा था पर रिलेटिव प्राइम आ गया, या फिर म्यूचुअली प्राइम, या फिर कोई कोई न्यूमेरिकल में ये भी दिया जाता है कि रिलेटिवली को-प्राइम. एवरीथिंग इज सेम. ओके, तो क्या होता है इसमें कि दो नंबर, 2 नंबर्स, ओके, हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, 2 नंबर जिनका बस एक ही है कॉमन फैक्टर, 1, द नंबर 1. ओके, सो दैट इज, अगर हम लोग देखेंगे कि 2 और 3, ओके, उनका बस एक ही कॉमन फैक्टर है विच इज 1. सिमिलरली, प्लीज रिपीट द टर्म्स ऑफ द वर्ड को-प्राइम. ओके, समृद्धि, बेसिकली को-प्राइम को हम लोग रिलेटिव प्राइम भी बोल सकते हैं, म्यूचुअली प्राइम भी बोल सकते हैं, okay? और काफी सारे न्यूमेरिकल्स में ये भी आता है रिलेटिवली को-प्राइम, तो विच इज ऑल्सो द सिमिलर थिंग. लाइक को-प्राइम, रिलेटिव प्राइम, म्यूचुअली प्राइम जो भी बताएंगे न्यूमेरिकल में, वो सिमिलर चीज है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ये फॉल करता है.
एंड द कॉन्सेप्ट इज विच इज कि ए दो नंबर हम लोग को प्राइम बताएंगे दो नंबर को जब दो नंबर का एक ही काइंड ऑफ फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, और वो एक होगा, ठीक है. और एनीवन हैज एनी क्वेश्चन लाइक? ओके ग्रेट. तो अभी एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे दिमाग में विच इज व्हाट इज कॉमन फैक्टर, राइट? एनीवन डज एनीवन वांट टू से व्हाट इज कॉमन फैक्टर? बिकॉज बहुत रुद्र प्रताप सिंह, you have raised your hand. Do you want to say anything, Rudra Pratap Singh? Rudra, if you want to say anything, you can, I guess you can unmute now. Okay, I guess गलती से हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं. Okay, so तो यहाँ पे जैसे कि 2 और 3, ठीक है, उनका एक ही कॉमन फैक्टर है विच इज 1, 5, 3 और 5 का भी सिमिलर है, 4 और 7 का भी है, 11, 15 ऐसे ही नंबर like mutually prime or co-prime, like this number will follow. So another thing that is there in this particular concept is, yeah, Shubham, right, common factor is a number which divides both the given number completely. Correct. आप लोगों को समझ आ गया होगा. तो common factor, yeah, absolutely right, Shubham Verma. Common factor is a number which actually which divides both the number completely, right? तो कॉमन फैक्टर को और एक कुछ हम लोग बता सकते हैं. आप एनीवन कैन कन्फर्म दैट कॉमन फैक्टर का एक्चुअली, ओके, आई विल जस्ट से इट बिकॉज़ टाइम काफी हो रहा है. या HCF, या GCD बेसिकली, या HCF और GCD, राइट. जो कॉमन डिविजर भी बोल सकते हैं, राइट, जो कि कंप्लीट एक डिविडेंड को कंप्लीटली खत्म कर देगा या फिर कंप्लीटली काइंड ऑफ डिवाइड कर देगा. तो इफ तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, अगर P और Q दो नंबर है और विच इज को प्राइम, ओके, तो दो नंबर क्या होता है, बोथ द फैक्टर्स, और एक नंबर और एक है विच इज K, ठीक है. तो उन दोनों का जो फैक्टर आएगा या फिर उन लाइक बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर K नंबर, ठीक है. एंड हम लोग अगर इन दोनों का P और Q का प्रोडक्ट निकालेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो भी K का फैक्टर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 24 देख सकते हो, राइट. तो 24 को हम लोग अगर K समझ रहे हैं, ठीक है, K इज बेसिकली 24, तो 24 का क्या क्या मतलब फैक्टर्स हो सकते हैं, यू कैन सी इट 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 इटसेल्फ. तो यहाँ पे अगर आप प्राइम फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं विच इज आपका 2 और 3, ठीक है, विच इज अगेन को प्राइम टू ईच अदर इज वेल. तो और यहाँ पे अगर हम लोग 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच आफ्टर दैट वी आर गेटिंग 6, तो 6 पे आपका 24 का ही फैक्टर आ जाता है, राइट. दिस वन यू कैन सी 6, राइट. 6 भी आप 6 भी 24 का फैक्टर आ जाता है. ग्रेट. ओके, एंड एनीवन कैन ऑडिट, यहाँ पे ऑडिट टर्म हम लोगों को मिल गया, प्राइम फैक्टर. कैन एनीवन से व्हाट इज प्राइम फैक्टर, और आई विल मेंशन इट. प्राइम फैक्टर अगर किसी को पता है व्हाट इज प्राइम फैक्टर? बहुत इजी है, ठीक है, और ज्यादा टाइम वो नहीं करते, ठीक है, और बहुत ही इजी है. प्राइम फैक्टर इज बेसिकली प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर विच इज अ फैक्टर, ठीक है. तो लिटरल मीनिंग पे ही ज्यादातर, मतलब लिटरल मीनिंग ही यहाँ पे वो करते हैं, ठीक है. इट्स नथिंग लाइक रॉकेट साइंस, बहुत ही इजी है. प्राइम फैक्टर इज बेसिकली प्राइम नंबर विच इज अगेन अ फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, विच जैसे कि 2 और 3 हम लोगों ने देखा, राइट, विच इज अगेन अ प्राइम नंबर एंड एज वेल एज अ फैक्टर ऑफ 2, 24, right, 2 and 3, okay. After that हम लोग समझेंगे ट्विन प्राइम. Anyone has any question? Okay, no question. Okay.
सो नाउ ट्विन प्राइम में हम लोग देखते हैं कि ट्विन प्राइम इज अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जहाँ पे डिफरेंस हो जाता है 2, ठीक है। 2 जैसे हम लोगों ने अभी मल्टीपल वाला मल्टीप्लाई का जो थियोरी हम लोग समझ रहे थे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के टाइम में, तो वहां पे हम लोग हम लोगों ने वो ऑब्जर्व किया था कि वो इक्वल इंटरवल में जंप करता है, राइट, इक्वल डिस्टेंस पे जंप करता है, वी हैव सीन दैट, राइट। तो यहाँ पे भी वही होगा, लाइक दो प्राइम नंबर, दो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 होगा, और वैसे ही होता जाएगा आगे तक, तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम मानते हैं, ठीक है। 3 और 5 जैसे कि उन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं तो उसका 2 आ जाता है, फिर 5 और 7 का भी सिमिलर वे में आता है, और 11 और 13 भी आपका ट्विन प्राइम है, ठीक है। इट विल मूव गो अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे छोटा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन अबाउट दिस प्राइम फैक्टर का जो भी डेफिनेशन है, इफ यू वांट टू सी इट यू कैन see it from here. A factor that is a prime number, basically, and any of the numbers that are multiplied to the given original number. For example, prime factor of 15 is 3 and 5. Okay. तो यहाँ पे explanation भी आप देख सकते हो क्यों 3 and 5 है, because 3 and 5 का जो प्रोडक्ट आता है, मतलब 3 and 5 is also 15. Okay. मैम सक्सेसिव प्राइम नंबर भी हो सकता है। Successive prime number, can you elaborate, Vivek, what is successive? What do you mean by successive prime number? जैसे कि 2 और 3 आप ये बोल रहे हैं। हाँ, सक्सेसिव, जैसे कि लाइक मैम 3 और 5, हाँ ये आपका ट्विन प्राइम नंबर। सक्सेसिव एज इन जो एक के बाद एक फॉलो होता है, लाइक 2 3 इज देयर, सिमिलरली 5 फिर 6 हो जाता है, तो फिर वो सक्सेसिव कैसे होगा? तो सक्सेसिव इज समथिंग दैट गोज, वो ना, तो इफ यू आर ट्राइंग टू से द सिमिलर थिंग, देन या हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। सो और एक बहुत बेसिक सा चीज जो कि क्लास 6 में हम लोग को पता चलता है, विच इज इवन एंड ऑड नंबर। सो इवन नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 विदाउट रिमाइंडर, मतलब विदाउट रिमाइंडर मतलब पूरा नंबर ही डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और ऑड नंबर वही होता है जो कि डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 2 में हम लोग देखेंगे कि वही नंबर का एंड में इधर 0 रहता है, या 2 या 4 या 6 या 8, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे कि ऑड नंबर है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो एंड इज बेसिकली 1 3 5 7 8, ऐसा ही रहता है, ठीक है। एंड एक सीरीज का एक पार्ट आ जाता है, सीरीज विच इज वी विल लर्न शायद से काफी लेट, बट बहुत ही, जैसे वी ऑल ऑफ अस आर क्वाइट, लाइक ऑल ऑफ अस आर नॉट इन क्लास 6, so all of us are quite like we know little mathematics, तो मैंने ये सीरीज वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था ताकि हम लोगों को वो कॉन्सेप्ट इंटर रिलेट हो जाए और हम लोगों को वो चीज याद रह जाए। ओके, तो दैट्स द रीजन आई ऑलरेडी मेंशन कि अगर हम लोग n पॉजिटिव नंबर्स को, लाइक n पॉजिटिव इवन नंबर को कंसिडर कर रहे हैं और उनका सम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है n विद इन ब्रैकेट n+1। ओके, और अगर हम लोग सिमिलर वे में ऑड नंबर्स के एक सम को या फिर सेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट विल बी n²। ओके, एनी वन ऑफ यू, डू यू लाइक एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी कि आप लोगों को ये पता था पहले से, या फिर इफ इट्स साउंडिंग वेरी न्यू टू यू सीरीज वाला पार्ट, देन आई विल हैव टू प्रिपेयर अ स्लाइड जहाँ पे सीरीज पूरा प्रॉपर मैं बताऊंगी डेफिनेटली, बट देन ये बेसिक सा चीज है जो कि आप लोगों को आई गेस समझ आना ही चाहिए। n और n+1 वाला और n² वाला कॉन्सेप्ट जो है गॉट रिवाइज्ड। ओके, या एब्सोल्युटली, या आई गेस्ड सो, राइट। तो बेसिकली वही होता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर्स, जहाँ पे
अगर कॉन्सिक्वेटिव 4 इवन नंबर्स के बारे में पूछ रहा है या फिर 5 इवन नंबर्स के बारे में पूछ रहा है, तो इन दैट केस एस एन, एस इज बेसिकली सीरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर 4 नंबर. Okay, so series of 4 number will be n bracket n plus 1. Okay, like you can see here 4 और ब्रैकेट में 4 विच इज n प्लस 1. तो यहाँ पे 20 आ गया. ठीक है. और अगर आप लोग रीचेक करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को देखना है कि सही में ये एक्चुअल आंसर दे रहा है हम लोगों को या फिर नहीं दे रहा है, राइट. सो इन दैट केस यू कैन सी, आप लोग मैन्युअली करके देख सकते हैं. फर्स्ट 4 इवन नंबर क्या है, वी नो राइट. 2 है राइट, 4 है, 6 है और 8 है. सबको अगर हम लोग ऐड कर दे रहे, सम निकाल रहे, तो वी विल गेट 20. सिमिलरली 5, अगर 5 कॉन्सिक्वेटिव इवन नंबर्स हम लोग कंसिडर कर रहे, तो सिमिलर वे में 30 आ जाता है. एंड यू कैन सी द रीचेक हियर इज. या ग्रेट. तो सिमिलर वे में ऑड नंबर भी यही कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है. एंड ऑड नंबर में भी आपको बस वही करना पड़ता है कि एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इज बेसिकली वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, दैट इज एन स्क्वायर. ठीक है. एन स्क्वायर इज एन इंटू एन. ठीक है, एन इंटू एन. और एन क्यूब आप लोगों को पता होगा, एन इंटू एन इंटू एन, लाइक 3 बार मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. तो कॉन्सिक्वेटिव 4 हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 विच इज 16. अगेन रीचेक में आप देख सकते हैं कि 1, 3, 5 और 7 को हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो वो 16 आ जाता है. ठीक है. दिस इज वेरी बेसिक एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. और यहाँ से ही पूरा लाइक स्टार्ट भी होता है पूरा न्यूमेरिक्स. इट्स नॉटिंग काइंड ऑफ नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल. So we will do this fun kind of 5 numerical है. If you all can kind of quickly do it. 5 मिनट लगेगा शायद, 5 मिनट से भी कम लगता है बेसिकली. 20 seconds करके लगता है ये न्यूमेरिकल करने में. तो if you can just solve it and just put the answer आप चैट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं. वेरी इजी. मैंने न्यूमेरिकल इजी इसीलिए रखा है ताकि किसी को ये ना लगे कि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है. मतलब पढ़ाया तो बहुत बेसिक और पता नहीं न्यूमेरिकल क्या दे दिया जैसे स्कूल में. 1 is 0. Okay. Okay. And anyone else like बाकी सारे न्यूमेरिकल्स को कर लीजिए. Okay. 2, 3, 4, 5 कोई और अगर कर सकते हैं. ओके. 2, 2, 3, 3. First 5 multiples of 1.
Yes, right. Okay, great. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. काफी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो गए इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36 पे. 36 तक सारे फैक्टर्स एक्चुअली जो कि मयंक मालविया ने भी दिया है आंसर है. कैसे विवेक पांडे ने भी दिया है. राइट. 36 तक सारा फैक्टर्स जैसे कि यहाँ पे बोला गया था कि मेंशन कर दिया गया था कि फर्स्ट 5 फैक्टर्स को बताना है. तो 5 ही बताना है. यहाँ पे कोई मेंशन ही नहीं किया कि कितना बताना है. तो 36 तक क्योंकि फैक्टर्स तो फाइनाइट ही होता है तो उसमें आप लोग डरने की कोई बात नहीं. तो 36 तक जितना भी फैक्टर्स है सब मेंशन कर दीजिए. राइट. ओके. ये बहुत बेसिक. तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. तो सोल्यूशंस भी आप जिनको जिनको जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, जिनको अभी तक कंफ्यूजन रह गया था, या जिनको अभी तक कंफ्यूजन रह गया था, आप देख सकते हो कि फर्स्ट का सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन. राइट. प्रोडक्ट तो जीरो आएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर होल नंबर को मल्टीप्लाई कर जीरो को मल्टीप्लाई कर रहे तो सब खत्म हो गया. मतलब uh, अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया. फिर उसके बाद ये डिविडेंड वाला जो इक्वेशन था वहां पे, यहाँ से आप लोगों को काफी टाइम वी कैन ऑल्सो गेट द क्वेश्चन लाइक कि रिमाइंडर को फाइंड करके फिर कुछ करना पड़े कुछ न्यूमेरिकल में. तो ये सिमिलर इक्वेशन पे हम लोग डिविजर और कोशेंट को यूज करके और डिविडेंड को भी अगर दे दिया गया तो डिविडेंड को भी रख के वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर. सिमिलर वे में क्वोशंट डिविजर कुछ भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. एंड सिमिलर वे में अगर हम लोगों को टू दो चीजें को हम लोगों को दो चीज हम लोगों को ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड भी नहीं पता है और रिमाइंडर भी नहीं पता है. और हम लोगों को दो वैसे मतलब दो जैसे सर करवा रहे थे, नीलेश सर वाज टीचिंग अस कुछ दिन पहले कि रेशियो प्रोपोर्शन में कि काफी टाइम दो वैल्यूएशन दिया जाता है. लाइक दो पार्ट्स दिया गया है, शाम राम श्याम और वट एवर, लाइक कुछ भी अगर दिया गया है तो सब्जेक्ट दिया गया है और वहां पे दो सब्जेक्ट में दो वैल्यूएशन करके दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल डिविजर और क्वोशंट दिया गया है. सिमिलर वे में हम लोग दो इक्वेशन को डिड्यूस करके हम लोग इजीली ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं अगर हम लोग का बेसिक क्लियर है. ओके. एंड तो 3 तो हम लोग को पता है वो पैटर्न वाला डॉट डॉट करके जो था, क्योंकि 4 का तो कुछ 4 ही ट्राइंगल नहीं हो सकता है. 4 का ट्राइंगल का तो बेस में ज्यादा लग जाता. तो वी कैन नॉट लाइक 4 नहीं होगा. ठीक है. 4 आपका ट्राइंगल नहीं बन सकता है. सिमिलर वे में आपका 36 का फैक्टर्स आप हम लोगों ने देख लिया और मल्टीपल भी सबने सही ही आंसर किया. दे ऑल आर एक्चुअली वेरी इजी. या एक्चुअली मैंने जान के ही इजी वो किया था. ठीक. ओके. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न अबाउट लाइक फर्दर डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट. पर अभी के लिए क्योंकि ये अगेन इट इज वेरी बेसिक तो अभी मैं जल्दी से ये बता देती हूँ क्योंकि फर्स्ट 2, 3, 4 और 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है. तो उसके पहले लाइक रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय अ नंबर जानने से पहले वी नीड टू नो व्हाट डिविजिबिलिटी इज. राइट. तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखा था डिविजिबल क्या है. राइट. मतलब एक नंबर अगर डिविजिबल है तो क्या होता है. वी रिमेंबर. राइट. एंड इफ एनीवन वांट्स टू मेंशन व्हाट इट इज यू कैन डू इट इन द चैट बॉक्स. क्या है डिविजिबल. लाइक डिविजिबल क्या है. व्हाट इज अ डिविजिबल. लाइक व्हाट इज डिविजिबल टर्म का मतलब क्या है. राइट. ब्रेकअप which can be divided. Right.
यस, और डिविजिबिलिटी ना एक शॉर्ट हैंड है, मतलब एक शॉर्टकट है, यू कैन से इट एज लाइक अ शॉर्टकट, जो कि डिटरमाइन करता है वेदर अ गिवन इंटीजर इज डिविजिबल बाय अ फिक्स डिविजर और नॉट, ठीक है, और विदाउट परफॉर्मिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिविजन। हम लोगों को जरूरत नहीं है कि पेन एंड पेपर में हम लोग बस डिविजन करते रहे एक न्यूमेरिकल में, ओके। अगर हम लोगों को ये रूल्स पता होंगे, इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस, और बहुत एक शॉर्टकट, लेकिन शॉर्ट हैंड मिल जाता है हम लोगों को, एक अपर हैंड और वो मिल जाता है, which leaves zero remainder, right now, yes, absolutely. तो सिमिलर वे में वही डिविजिबिलिटी इज अ वेरी शॉर्ट हैंड यूसेज, और ये क्या करता है, एक नंबर को हम लोगों को एग्जामिन करने में बहुत यूजेबल, लाइक बहुत यूजफुल हो जाता है, एक नंबर को कैसे हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और जैसे 2 का डिविजिबिलिटी तो मतलब सबको पता होगा, विच इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, जबकि हम लोग कोई भी डिजिट हम लोग अगर देखेंगे कि 0, 2, 4, 6, 8, मतलब 2 का अगर मल्टीपल में कोई भी नंबर है तो उस अगर एंड में वो नंबर है तो हम लोग देख के समझ जाएंगे कि वो नंबर एक नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। लाइक वंस प्लेस में हम लोगों ने प्लेस वैल्यू पढ़ा था, तब हम लोगों ने देखा था कि वंस क्या होता है, टेंथ प्लेस क्या होता है, वंस प्लेस इज दिस, टेंथ प्लेस इज दिस, 100th प्लेस इज दिस, 1000th प्लेस इज दिस, राइट। तो प्लेस वैल्यू का आप लोगों को वो मिल रहा है, राइट। तो वंस प्लेस में जब हम लोगों को कोई भी ऐसा नंबर दिखेगा, ये 0 या 2 या 4, 6 और 8, ये नंबर अगर दिखेंगे तो विल अंडरस्टैंड इट विल बी डिविजिबल, इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 क्या होता है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ like if the sum of the digit is a multiple of 3, right, yes। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, 2 तो बहुत इजी था, राइट। तो 3 क्या होता है, डिविजिबिलिटी बाय 3, विच इज अगर एक नंबर हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, उस नंबर का सारे डिजिट को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, और वो ऐड करा हुआ नंबर अगर हम लोग देखेंगे कि वो ऐड करा हुआ नंबर 3 का मल्टीपल है, तो वो नंबर जरूर आपका 3 से डिविजिबल होगा ही, ठीक है। जैसे आप ये नंबर पे देख सकते हैं कि 4, 5 और 3, ठीक है, वहां पे आप 4 + 5 + 3, 4 + 5 9 + 3 12 हो गया, तो ये आपका 12, तो ऑफ कोर्स इट्स डिविजिबल बाय 3, राइट। 4 से डिविजिबल है, राइट। तो ये नंबर जो आपका एग्जाम्पल में था 453, which is a number that we were searching for, ठीक है, एक नंबर जो कि डिविजिबल बाय 3 है। आफ्टर दैट आपका अगर 4 का देखना है हम लोगों को, तो 4 में क्या देखेंगे, अ नंबर विथ 3 or more digit divisible by 4. So if a number is formed by the last 2 digit, that is the 1 and the 10th place, is divisible by 4, then हम लोग उसको डिविजिबिलिटी, ये 4 वाला डिविजिबिलिटी रूल के अंदर ला देंगे, ओके। जैसे ये वाले नंबर आप देख सकते हो कि 45024, तो उसका अगर लास्ट 2 डिजिट 1 प्लेस और 10th प्लेस में, क्या क्या नंबर है, 1 प्लेस में है 4 और 10th प्लेस में है 2, राइट। तो 1 और 2 और 4 है, विच इज 24। तो 24 तो हम सबको पता है कि डिविजिबल बाय 4 है, राइट, 6 से है, राइट, वी नो। तो ये नंबर, ये जो बहुत एक ह्यूज नंबर हम लोगों ने देखा था 45,024, ये नंबर ऑफ कोर्स इट विल बी डिविजिबल बाय 4। तो ये हम लोगों को मतलब ये क्या करता है ना, डिविजिबिलिटी बेसिकली, जैसे मैंने बताया, डिविजिबिलिटी बेसिकली एक शॉर्ट हैंड या फिर शॉर्टकट एक मेथड दे देता है हम लोगों को न्यूमेरिक मतलब हाई लेवल न्यूमेरिक्स या फिर कोई भी न्यूमेरिक्स हम लोग प्रॉब्लमैटिक, जो भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इजीली समझ पाए, हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे फोकस कर पाए, रादर देन फोकसिंग कि ओ माय गॉड एक नंबर का डिविजिबिलिटी क्या होगा। उस पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर हम लोगों को डिविजिबिलिटी का रूल ढंग से पता हो, ठीक है। और 5 का डिविजिबिलिटी तो बहुत इजी है, विच इज अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 या 5 से, ठीक है, अगर 1 प्लेस में आप
आपको अगर देखिए 0 या 5, तो वो नंबर हो गया आपका डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 हो गया, तो वो डिविजिबिलिटी रूल 5 के डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आ गया। जैसे आपका 10, 15, महाशंख, बिलियन, ट्रिलियन, कोई भी नंबर हो गया, 2050 हो गया, 2055 हो गया, कोई भी नंबर है, ठीक है। कुछ भी नंबर अगर 0 और 5 के अंदर 0 और 5 से एंड होता है, तो वो नंबर आपका डिविजिबल बाई 5 हो जाता है। दीज आर वेरी मतलब बहुत बेसिक सा था। इफ एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग, you can. Or next class we will move forward with further portions of divisibility, like 6 ka, 7 ka will understand, 8 will understand. And ye jo basic rules hai, I've also seen like kind of these portions mentioned in CSAT ke papers mein and CSAT ke book. Maybe I have also seen this particular concepts. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर अस टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड। तो जैसे कि मैंने बहुत बेसिक 5 तक ही बताया, राइट, 2, 3, 4 और 5 का बताया मैंने, राइट, अभी। तो आप लोग और हम सब एक्चुअली, क्योंकि वी ऑल आर स्टूडेंट्स, सो वी ऑल विल गो बैक होम एंड विल एक्सप्लोर दिस डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है और इसमें क्या हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्लास में we will try to enhance whatever we have learned, and we'll try to learn something new in this particular divisibility rule. Okay, and if anyone else also wants to add anything, you're you're welcome. Shagun, you have raised your hand. I have unmuted you. Ask you. Shagun, if you want to say something, you can. I have asked you to unmute. You can unmute yourself and you can say, or you can write it in the chat box as well. Or if anyone else has any question up until now, you can also mention it in the chat box. अगर किसी को question है कुछ, you can mention it chat box में, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको unmute करूँ, that also I can do. ठीक है, ताकि आपसे भी हम लोग कुछ जान पाए। और जैसे सर ने भी काफी टाइम मेंशन करा है, ये क्लास आपका बेसिक्स को क्लियर करने, हम सब का बेसिक्स को क्लियर करने के लिए है। तो हम सब इसमें एकदम बहुत ही, जैसे आज भी हम लोगों ने बेसिक ही पढ़ा, जैसे फैक्टर्स क्या है, डिविजिबल क्या है, 0 क्या है, 1 क्या है, ठीक है, वैसे ही पढ़ेंगे, ताकि हम लोग जब हाई लेवल चीजें पढ़ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स का हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और वी आर अंडरस्टैंडिंग बजट, वी आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ आवर एंटायर इंडियन सिस्टम, इंडिया का पूरा सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम हो गया, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, लाइक फॉरेन में फॉरेक्स कैसे काम करता है, कुछ भी, तो उसमें हम लोग कितना खो जाते हैं। वी टेंड टू फॉरगेट आवर रूट्स, वी टेंड टू फॉरगेट आवर बेसिक्स। तो दैट्स द रीजन व्हाई, दैट्स द मेन एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, ताकि हम लोग ये चीजें ना भूले, ताकि हम लोगों का मजाक ना बन जाए जहां भी हम लोग पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने के बाद, कि अरे इसको तो प्राइम नंबर नहीं पता, अरे इसको तो नंबर ही नहीं पता कि क्या होता है। कोई ये भी पूछ सकता है कि 0 क्या है, तो वी नाउ हैव अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट 0 इज, व्हाट 1 इज। और जैसे कि डिविडेंड डिवाइजर पे भी हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है काफी टाइम। तो मेरे को तो होता था, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डज हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज यस। तो ये सारी चीजें पे वी नीड टू ऑल्सो फोकस, बिकॉज बेसिक से ही स्टार्ट होता है सब कुछ। ABCD नहीं पता होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू speak and talk like Shashi Tharoor or any Oxford people or something, like किसी मतलब किसी वैसे कोई और लैंग्वेज तो दूर की बात, अगर खुद का ही लाइक बेसिक चीजें नहीं पता होगा तो डिफरेंट लैंग्वेज सीखना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई हैव ओनली फोकस्ड ऑन लाइक आपका NCERT बुक में ही मैंने बस NCERT की 6 लेवल की बुक 7 और 8
तो 6 पे ही हम लोग फोकस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ओके। एंड आगे जा और मैं मतलब देखती हूँ सीसैट का और एक बुक से भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स उठाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपका एनसीईआरटी में सिर्फ कुछ लाइक सिर्फ 7 और 9 डिविजिबिलिटी रूल्स दिया गया है, तो आई हैव मेंशन और बाकी डिविजिबिलिटी रूल जो कि सीसैट के लिए भी जरूरत होगा, तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो वो मैं कंसल्ट करके देखती हूँ कि बेसिक से रिलेट करके जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, आई सी इट, बट बेसिक पे ही फोकस करती हूँ जनरली मैं। जैसे क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ वेरी वी हैव नीलेश सर who's very who's great amazing actually। मैंने इतना इजी मैथमेटिक्स का मतलब स्कूल में ही, मेरा एक टीचर था तो स्कूल में ही आई हैव लर्न लाइक दिस। एक ही टीचर मुझे मिला था मतलब नीलेश सर जैसे, और अभी नीलेश सर भी मिले, तो ही इज ऑल्सो ग्रेट। आई वुड अर्ज एवरी वन टू अटेंड हिज क्लास इज वेल, इतना इतना इजी वे में। थैंक यू समृद्धि। आई एक्चुअली हैव a little like language का थोड़ा इशू है मेरा, but I'm मतलब यश and Aryan they actually help me out a lot। जनरली हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं so that I can get uh, ahead of this particular barrier of myself as well। Okay, thank you। Anyone else wants to add anything or we can wrap it up क्योंकि 3 o'clock हो गया already and we all need to kind of take a little rest and then we need to move on to our studies as well। आई थिंक इट्स फाइन। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगेन लाइक अगर पिछले क्लास में भी मैंने मेंशन किया था कि अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आप लोग अभी शाइनेस की वजह से या फिर कोई भी रीजन की वजह से यू हैव नॉट मेंशन इन दिस पर्टिकुलर क्लास, या आप लोग कुछ भी रीजन हो सकता है, तो यू कैन मेंशन इट इन द ग्रुप। तो वहां पे तो चैट तो कर ही सकते हैं हम लोग, कितना भी इंट्रोवर्ट हो चैट पे मेंशन कर दीजिएगा अगर किसी को कुछ ऐड करना है और ओमिट करना है। थैंक यू सो मच गाइस।